صبح پنجاب کے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے قیمتی جواہرات سے ہمارے دل کو منور فرمائیں۔ گھنٹہ کی سارا ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گھنٹہ مار کے ساڈا نہیں روک لیں نا افطار تھوڑی دیر نہ تھان روک دے روک دے کھچے پڑے ایک گھنٹہ لائٹ کر کوئی بھی چلا شہزاد الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے۔
اس میں جو کچھ ہے ہمارا دین ہے، ایمان ہے۔ دشمن نہ ملے گا، ہمیں شیطان سے بدتر اور رہبر نہ ملے گا، ہمیں قرآن سے بہتر۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو گوشت اللہ کے در دیا۔ میرے والد احترام، قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، خطبہ حضرات، طلباء کرام، قمائدین علاقہ، معززین علاقہ، حاضرین و سامعین، بزرگ والدین اور نوجوان دوستوں، آج ایک عرصہ دراز کے بعد آپ کے اس علاقہ میں برادر مکرم حضرت مولانا قاری عبدالستار صاحب کی دعوت پر برادر مکرم حضرت مولانا عطا اللہ صاحب کی وساطت سے حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا کریں کہ رب العالمین میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ ذرا بلند آواز سے کہہ آمین۔ تاکہ مجھے محسوس ہو کہ یہ جاگ رہے ہیں اور میں نے کچھ جاگتا ہوا بیان کرنا ہے۔ انشاءاللہ۔ بہت لمبا سفر کر کے آپ تک پہنچے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل گنے کا سیزن ہے، راستے میں ہمارے علاقے میں خاص طور پر ٹرالیاں اور راستے گلاب، پھر بھی ہم نے کوشش کی۔ صبح تقریباً 12:30 سے نکلا ہوں، ابھی آپ کے سامنے 11:30 پہنچا ہوں، مسلسل 9 گھنٹے کا سفر کر کے، 9-10 گھنٹے کا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ تھکے بیٹھے ہوں تو دعا کرا کے آپ کی جان چھوڑ دیں۔ اگر تھکے نہیں بیٹھے تو پھر آپ کو میرے ذوق کا پتہ ہے کہ میں باذوق آدمی ہوں اور باذوق مجمع چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے کسی عنوان پہ سننا چاہتے ہیں تو پھر مجھے آپ کے چہروں پہ کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی مرجھاہٹ، کوئی گھبراہٹ نظر نہیں آنی چاہیے، بلکہ اتنا کھل کے اور کھل کے بیٹھے کہ آپ کے چہروں پہ ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ اور بزرگوں کے علاوہ جو بزرگ بوڑھے ہیں، ریٹائر یا ایکسپائر ہیں، ان کو معافی ہے، باقی جو جوان لوگ بیٹھے وہ ذرا دیواروں سے ٹیک لگا کے نہ بیٹھے، تھوڑا آگے مجمع کے ساتھ جڑ کے بیٹھے، آگے کچھ نہیں ہوتا۔ میں بہت بھی لمبی جوڑی نہیں کرتا، قریب آ جائے دوستوں بزرگوں، قریب ہوگا، کوئی بات نہیں، یعنی کوئی ڈسپلن ہوتا ہے، جلسے کا ایک انداز ہوتا ہے، یہ دکھنے بہت ہی اچھے نہیں لگتے، پوروں کے ایک تصویر بن جاؤ تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، کوئی وہاں بیٹھے کوئی وہاں، اس طرح اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے دل کو مل کے بیٹھے تاکہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی ملا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں توجہ میری طرف، آج قاری صاحب کے اس ادارے کے طلباء کی دستار بندی تھی، حفاظ ترام کی، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں کسی موضوع سکون پر 2-4 باتیں اپنے ذوق کے مطابق آپ کے گوش گزار کریں۔ رب العالمین نے کائنات ارض و سما میں لاکھوں
انواع و اقسام کی مخلوقات کو پیدا کیا اور پھر طریقے خدا رہا کہ اللہ نے ہر قسم کی مخلوق میں سے 4 کو چنا، پھر ان 4 میں ایک سردار کو چنا۔ آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ پوری کائنات کی تمام مخلوقات میں سے 4 کو چنا اور پھر 4 میں سے سردار کو چنا، ایک سردار کو چنا۔ انہوں نے باتیں کرنی ہے تو مولوی صاحب کو باہر اٹھائیں پلیز، مجھے ڈسٹرب نہ کرو بیٹا، یہ ادھر سیدھے ہو کے بیٹھے ہو، کیسے تم لگ کے بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ مسجد میں بیٹھنے کا انداز ہے مولانا، خدا کا خوف کرے، آپ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، توجہ نہ ہو کہ میں بات نہیں کر سکتا، میں کوئی رسمی آدمی نہیں ہوں، دل سے بولتا ہوں، دل میں اتارتا ہوں، اس لیے مجھے سننا ہے تو بڑے احترام سے بیٹھنا ہوگا، بڑی محبت سے بیٹھنا ہوگا۔ میں تو آپ کو پتا ہے کئی سال ہو گئے میں تو پروگرام زیادہ دور دیتا ہی نہیں، نہ اتنے لمبے سفر ہوتے ہیں۔ قاری صاحب کی محبت کی بہت ساری سفارشیں، بار بار قاری صاحب نے مجھے ٹچ کیا فون پہ، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کہ ہم آ جاتے ہیں، تو اتنا بے قدری نہیں ہونی چاہیے، تھوڑا احترام سے بیٹھا کریں، اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی بہتر ہوتی ہے، یہ گپ شپ بات میں لگا دیتا ہے، کیا دے سبحان کوئی کی نہیں اللہ نے پوری کائنات میں 4 کو چنا اور پھر 4 میں ایک سردار کو چنا۔ رب کائنات نے مخلوقات کو روئے زمین پہ لاکھوں قسم کی پیدا کی، لیکن اس ساری مخلوقات میں کائنات کے رب نے 4 مخلوقوں کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے انسان کہا، ایک کو اللہ نے حیوان کہا، ایک کو اللہ نے جنات کہا، ایک کو اللہ نے ملائک کہا۔ پھر ان 4 مخلوقوں میں اللہ نے انسان کو چن کر پوری کائنات کی مخلوقات کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر انسانوں کے بعد اللہ نے روئے زمین پہ دن رات اور مہینے بھی پیدا کیے، دن بھی سال کے بہت ہیں، لیکن اللہ نے ان میں 4 دنوں کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک دن کو اللہ نے یوم جمعہ کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم عرفہ کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم فطر کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم الضحیٰ کہا۔ پھر ان 4 دنوں میں اللہ نے یوم عرفہ کو چن کر پورے سال کے دنوں کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر دنوں کے بعد اللہ نے راتیں بھی پیدا کی، راتیں بھی سال کی بہت تھی، لیکن اللہ نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک رات کو اللہ نے شب قدر کہا، ایک رات کو اللہ نے شب برات کہا، ایک رات کو اللہ نے شب عرفہ کہا، ایک رات کو اللہ نے شب جائزہ کہا۔ پھر ان 4 راتوں میں اللہ نے شب قدر کو چن کر پوری کائنات کی راتوں کا سردار بنا دیا۔ پھر راتوں اور دنوں کے بعد اللہ نے مہینے بھی پیدا کر دیے، مہینے بھی سال کے 12 تھے، لیکن اللہ نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک دن ایک مہینے کو اللہ نے رجب کہا، ایک کو اللہ نے شعبان کہا، ایک کو اللہ نے رمضان کہا، ایک کو اللہ نے محرم کہا۔ پھر ان 4 مہینوں میں اللہ نے رمضان کو چن کر سارے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ پھر دن رات اور مہینوں کے بعد کائنات کے رب نے دنیا میں مخلوقوں میں ملائک بھی پیدا کیے۔ ملائک تو دنیا میں اربوں اور خربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اللہ نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے جبریل امین کہا، ایک کو اللہ نے جناب میکائیل کہا، ایک کو اللہ نے جناب اسرائیل کہا، ایک کو اللہ نے جناب اسرافیل کہا۔ پھر ان 4 فرشتوں میں اللہ نے جبریل کو چن کر سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ پھر فرشتوں کے بعد اللہ نے انسانیت میں بھی بہت سارے طبقات پیدا کر دیے۔ طبقے تو بہت تھے، انبیاء کا طبقہ، صحابہ کا طبقہ، شہداء کا طبقہ، صالحین کا طبقہ، ائمہ مجتہدین کا طبقہ، اولیاء کا طبقہ۔
गौस अब्दाल और कुतुबों का तबका, हुक्मा और रुआया का तबका, मुख्तलिफ तबकात थे, लेकिन अल्लाह ने उनमें भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक तबके को कुरान ने मिनन नबीयीन कहा, एक को कुरान ने मिनन सिद्दीकीन कहा, एक को कुरान ने मिनन शुहदा कहा, एक को कुरान ने मिनन सालिहीन कहा। फिर उन 4 तबकों में अल्लाह ने अंबिया के तबके को चुनकर पूरी कायनात के तबकों का सरदार बना दिया। फिर नबी भी 2, 4 या 10, 20 हजार नहीं, 1,24,000 पैगंबर हैं। उन 1,24,000 पैगंबरों में अल्लाह ने 4 पैगंबरों को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक पैगंबर को जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा, एक पैगंबर को जनाब मूसा कलीमुल्लाह कहा, एक पैगंबर को जनाब ईसा रूहुल्लाह कहा, एक पैगंबर को जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उन 4 पैगंबरों में अल्लाह ने तेरे और मेरे पैगंबर सरवरे कौनैन साक़ी कौसर ताजदारे मदीना फखरे दो आलम आमना के दुर्रे यतीम अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुनकर पूरी कायनात के अंबिया का सरदार बना दिया। फिर अंबिया के बाद अल्लाह ने पूरी कायनात में उम्मतें भी पैदा कर दी और उन उम्मतों में उम्मत मोहम्मद को सरदार बनाकर फिर इस उम्मत में भी अल्लाह ने बहुत सारे तबके बनाए। फिर उन तबकों में अल्लाह ने सहाबा की जमात को चुनकर फिर उन सहाबा की जमात में भी अल्लाह ने 1,54,000 सहाबा में 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक अकबर कहा, एक को उमर फारूक आजम कहा, एक को उस्मान गनी कहा, एक को अली हैदर कर्रार कहा। फिर उन 4 में जनाब अबू बकर को चुनकर सारी कायनात में नबी के सहाबा की सारी जमात का सरदार बना दिया। फिर इससे भी और आगे चल कायनात के रब ने रूए जमीन पर अपने घर भी बनवाए। अल्लाह के घर हर बस्ती के जो बाजार और सहारा में है, लेकिन अल्लाह ने उनमें भी 4 घरों को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक घर को अल्लाह ने बैतुल्लाह कहा, एक घर को अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस कहा, एक घर को अल्लाह ने बैतुल तूरे सैदा कहा, एक घर को अल्लाह ने मस्जिद नबी कहा। फिर उन 4 घरों में अल्लाह ने बैतुल्लाह को चुनकर अपने सारे घरों का सरदार बना दिया। फिर उससे भी और आगे चल कायनात के रब ने रूए जमीन पर अपने पैगंबर की उम्मत में इमाम भी बहुत सारे पैदा किए, लेकिन उन सारे इमामों में अल्लाह ने 4 इमामों को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को इमाम आज़म अबू हनीफा कहा, एक को इमाम अहमद इब्न हंबल कहा, एक को इमाम मालिक कहा, एक को इमाम शाफी कहा। फिर उन 4 इमामों में तेरे और मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा को चुनकर सारे इमामों का सरदार बना दिया। और बिल्कुल इसी तरह कायनात के रब ने अल्लाह के कायनात के रब ने अपने पैगंबरों पर किताबें भी बहुत सारी नाज़िल की। 123 सहीफे दुनिया में उतरे, लेकिन उन 123 किताबों में अल्लाह ने 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक किताब को अल्लाह ने कुरान कहा, एक को अल्लाह ने तौरात कहा, एक को अल्लाह ने ज़बूर कहा, एक को अल्लाह ने इंजील कहा। फिर उन 4 किताबों में अल्लाह ने कुरान को चुनकर सारी कायनात की किताबों का सरदार बना। रब्बे कायनात ने वो कुरान, वो अल्लाह का कलाम जो आज आपके सामने तलबा कराम ने दस्तार बंदी करा के उस कुरान के 30 पारों को अपने सीने में समो लिया, अपने सीने में परो लिया। बड़े मुकद्दस है वो माँ बाप जिनके बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ करके आज दस्तार बंदी कराई है। बड़े मुकद्दस है, कीमत का पता क़यामत के दिन चलेगा। आज दुनिया खुश होती है, मैंने बेटे को CSS करा दिया, मैंने बेटे को PhD करा ली, मैंने बेटे को MPhil करा लिया, मैंने बेटे को डबल ट्रिपल MA करा लिया, मैंने बेटे को मास्टर डिग्री बना दिया, मैंने बेटे को MSc करा दिया, मैंने बेटे को LLB करा दिया, मैंने बेटे को जनाब BSc करा दिया, फला करा दिया, फला करा दिया। काबे के रब की कसम ये सारी सनदें इधर दुनिया में दब जाएगी, लेकिन जिसके पास कुरान की सनद है दुनिया में भी इज्जत व मकाम है, क़यामत के दिन भी जन्नतुल मौला में आला मकाम। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, मैं 2-4 बातें उसी कुरान की करना चाहता हूँ जिस कुरान को आज हमने और आपने भूला, जिसको गिलाफों में कैद करके हमने अलमारी और शोकेस में सजा के रख दिया। कई महीने गुजर गए, हमें उसको खोल के देखने की तौफीक ही नहीं होती। रोजाना झूठी खबरों के अखबार खरीद के पढ़ते हैं, सच्ची खबरों वाले अखबार, सच्ची खबरों वाला कुरान मुफ्त में घर में और मस्जिद में रखा है, मगर पढ़ने की तौफीक नहीं है। आओ
आज उस अल्लाह के कलाम की जिक्र और उसकी बात करते हैं कि वो अल्लाह का कलाम कितना मुकद्दस है, कितना बाबरकत है, कितना बासआदत है। तो रब्बे कायनात ने कुरान मुकद्दस का तारुफ सूरह बकरा के शुरू में आपने बहुत दफा सुना होगा, लेकिन मैं अपने अंदाज में कराऊंगा, जो कि अब्बासी का रंग भरूंगा उसमें, बड़ी देर तक इंशाअल्लाह आपको याद रहेगा। अल्लाह ने अपनी इस किताब का तारुफ सूरह बकरा के शुरू में 3 हुरूफ और 2 जुमलों में कराया है। कितने जुमले? 3 हुरूफ और 2 जुमले। बड़ा जामे माने तारुफ। 3 हर्फ पे है, अलिफ लाम मीम, और 2 जुमले के ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। पूरे कुरान का तारुफ इन 2 जुमलों में है। आगे भी कहूं कि पूरे कुरान का खुलासा भी इन 2 जुमलों में है। उलमा से मुफस्सिरीन से जाके पूछ लेना कि आगे सारा कुरान तफसीर कुरान बिल कुरान है। आगे सारा कुरान इन 2 जुमलों की वजाहत में है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह और हुदल लिल मुत्तकीन। आगे फिर अल्लाह ने वजाहत शुरू कर दी। मुत्तकीन कौन है, मुनाफिकीन कौन है, काफिरीन कौन है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, अंबिया कैसे आए, उम्मतें कैसे आई, हालात क्या थे, हाँ माजी क्या था, हाल क्या है, मुस्तकबिल क्या होगा, कबर क़यामत क्या होगी, सारा आगे तफसीर कुरान बिल कुरान है। लेकिन अल्लाह ने जो इस किताब का तारुफ कराया वो 3 हरफों में और 2 जुमलों में। सुभान अल्लाह। अलिफ लाम मीम। अल्लाह, ये अलिफ लाम मीम क्या है? सवाल करते हैं अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब एक शिकवा की तर्ज पे, अल्लाह ये अलिफ क्या है, लाम क्या है, ये मीम क्या है? आप मुफस्सिरीन मुहक्किकीन ने लिखा है कि ये हुरूफ मुक़त्ताअत जो चंद सूरतों से पहले लिखे हैं, इनका माना, मतलब, मफ़हूम, वज़ाहत, तफसीर, तशरीह, ट्रांसलेशन अल्लाह ही जानता है, किसी को पता नहीं। लेकिन बाज़ उलमा मुहक्किकीन मुफस्सिरीन ने अपने आइडियाज, अपने गेस, अपनी विजदानी कैफियत के इजहार करते हुए कहा कि ये अलिफ लाम मीम देखने में तो 3 हरफ हैं, लेकिन हकीकत में ये 3 कस्में हैं। क्या है? हकीकत में ये 3 कस्में हैं। कौन सी? फरमाया अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अज़मत की कसम। अल्लाह आपको कस्में उठाने की क्या जरूरत पड़ी? आपने क्यों कस्में उठाई? बगैर कसम के भी बात करते तो इत्मीनान होता। अल्लाह फरमाते नहीं, जो आगे मैं बात करने जा रहा हूं वो बात बड़ी अहम है। 14वीं सदी का कोई मिरासी और चूड़ा आएगा, वो मेरी इस किताब को झूठा कहेगा। मैं इसलिए इस किताब की सदाकत के लिए पहले 3 कस्में उठा रहा हूं। 3, 1 नहीं, 2 नहीं, 3। अलिफ मुझे अपनी कसम, लाम मुझे जिब्रील की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की कसम। अल्लाह इन 3 की कस्में क्यों उठाई? आपने तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, कुरान में, मुख्तलिफ किताबों में अल्लाह अपने कस्में उठाई, लेकिन वो कस्में और थी। जमीन की कसम, आसमान की कसम, सूरज की कसम, चांद की कसम, वक्त के चांद की कसम, जमाने की कसम, नबी के जुल्फों की कसम, चेहरे की कसम, नबी की चादर की कसम, कंबल की कसम। लेकिन यहाँ पे अल्लाह आपने और कसम उठाई, वो नहीं उठाई। अल्लाह ये क्यों? अपनी जिब्रील की, मोहम्मद की। फरमाया हाँ, इसलिए कि कुरान का ताल्लुक इन तीनों से था, इसलिए मैंने उन तीनों की कसम उठाई कि भेजने वाला मैं था, मैंने अपनी कसम उठाई। लेके आने वाला जिब्रील था, मैंने जिब्रील की कसम उठाई। जिस पे उतरा वो मोहम्मद था, मैंने मोहम्मद की कसम उठाई। कि मुझे अपनी कसम, जिब्रील की कसम, मोहम्मद की कसम। अल्लाह बात क्या है आगे? फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। बात यह है कि मैं 3 कस्में उठा के कह रहा हूँ कि 14वीं सदी के चूड़े पे इतबार न करना, जो मेरे कुरान को झूठा कहे उस पे इतबार न करना। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब सच्ची है या गैर है, शक शुबह वहम गुमान तरद्दुद रैब शैबा मिर्या से भी पाक है। जैसे मैं पाक वैसे मेरी किताब पाक, जैसे जिब्रील पाक वैसे ये किताब पाक, जैसे मोहम्मद पाक वैसे ये किताब पाक, जैसे हम तीनों में शक नहीं वैसे मेरी किताब को भी शक। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये किताब ला रैब बेऐब है,
शक व शुबा से पाक है। अब फिर एक और सवाल उठता है, या अल्लाह आपने कुरान के तारुफ में जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो ज़ालिकल किताब का किया। पूरी तवज्जो चाहूंगा आले दिल, आले ज़ौक़, आले नज़र, आले फिक्र से और गुलामाने सहाबा से पूरी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह आपने ज़ालिकल किताब कहा, ज़ालिकल कुरान क्यों नहीं कहा? जबकि कुरान में जहां भी कुरान का जिक्र आया लफ्ज़ कुरान कहा, यासीन वल कुरानिल हकीम, अर-रहमान अल्लमल कुरान, इन्न हाज़ल कुरान बल हुवा कुरानुन मजीदुन फी लौहिन महफूज। लेकिन अल्लाह हर जगह लफ्ज़ कुरान इस्तेमाल किया, यहाँ पे लफ्ज़ किताब इस्तेमाल किया। वजह क्या है? यहाँ ज़ालिकल कुरान वाले वफ़ी क्यों नहीं कहा? तो कायनात के रब की तरफ से जवाब शिकवा मिलता है, हाँ मेरे नबी की उम्मत के लोगों, मैंने इसलिए ज़ालिकल कुरान नहीं कहा। अगर मैं ज़ालिकल कुरान ला रहे वफ़ी कहता कि कुरान ला रहे है, कुरान पाक है, कुरान में शक नहीं, तो 14वीं सदी का कोई काफिर, मुनाफिक, कोई चूड़ा कह सकता था कि कुरान को तो हम भी मानते हैं, ये कुरान थोड़ा है, ये तो आम किताब है, ये तो सहाबा की लिखी हुई है, ये तो और किताब है। असल कुरान तो वो है जो बारों में पढ़ा है, असल तो वो है जिसके 40 पढ़े हैं, असल तो वो है जिसको बकरी खा गई, असल तो वो है जो मुसफ़े फातिमा है। ये कुरान नहीं, ये तो आम किताब है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने उसके कदर का पर्दा चाक करने के लिए ज़ालिकल कुरान नहीं कहा, बल्कि ज़ालिकल किताब कहा कि ये किताब सच्ची है तो तेरे हाथों में है। ज़ालिकल किताब ये किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है। उलमा कहते हैं पूछो ज़ालिका इसमें इशारा है, इसमें इशारा होता है कि ये अल्लाह ने हर पढ़ने वाले को कह दिया ज़ालिकल किताब, यही किताब सच्ची है जो तू पढ़ता है। तुझे कोई गुमराह न करे कि नहीं ये सब कुरान और है, नहीं ये सब कुरान 40 पारों वाला है, नहीं। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकल किताब, यही किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में। अब अगले जुमले में कायनात के रब ने तारुफ कराया हुदल लिल मुत्तकीन। पहले जुमले में अल्लाह ने कुरान की सदाकत का मयार बताया कि इसकी सदाकत इतनी अजीम है कि शक करने की गुंजाइश ही नहीं। और दूसरे जुमले में कायनात के रब ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन की हिदायत का समंदर बन के आई है, जो भी इसके साथ चलेगा वो मंज़िल मज़दूर तक पहुंच जाएगा। अब रब कौनैन के दरबार में दस्ते सवाल दराज करते हैं, या अल्लाह आपने तो 2 जुमलों में तारुफ करा दिया इस कुरान का, 2 जुमलों में, ये तो बहुत थोड़ा है, हमें तो इसकी मजीद वजाहत चाहिए, तफसीर और ट्रांसलेशन और तारुफ चाहिए। अल्लाह इस किताब के बारे में हमें कुछ और भी तारुफ चाहिए। अल्लाह इस किताब का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब का काम क्या है, अल्लाह इस किताब का शान क्या है, अल्लाह इस किताब का एहतराम क्या है, अल्लाह इस किताब का इकराम क्या है, अल्लाह इस किताब का असली मकाम क्या है, अल्लाह इस किताब को पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, अल्लाह इस किताब से दोस्ती करे, अमल करे तो उसका अंजाम क्या है, अल्लाह इस किताब को भेजने वाले का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब को लेके आने वाले का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब जिस पे उतरी उसका नाम क्या है, अल्लाह इस किताब ये किताब जिस महीने में आई उस महीने का शान क्या है, अल्लाह इस किताब ये किताब जिस रात में उतरी उस रात का मकाम क्या है। तो कायनात के रब फरमाते हैं मेरे नबी की उम्मत के लोगों, अगर इन सारे सवालों का जवाब चाहते हो फिर मुझसे क्यों पूछते हो? वुजू करो, कुरान उठाओ और इसको हाथों में उठा के खोलो, इसे चूमो, इसे पढ़ो, इसे खोल के इससे बातें करो। तुम कायनात का जो भी सवाल करोगे तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरी किताब देगी। अब आओ चक्कर वालों, तुम्हें भी कुरान के समंदर की लहरों में तैराता चलो और कुरान के दरवाजे को खटखटाता चलो, उससे सवाल करके जवाब मांग के तुम्हारे दामन में सजाता चलो और अज़मत कुरान से तुम्हारे दिल और दिमाग को महकाता चलो। आओ कुरान के दरवाजे पे दस्तक देते हैं कि किताब तू अपना तारुफ तो कराओ। तो वो किताब कहती है क्या पूछना है तो पूछ, मैं बताऊंगी। ए किताब तू ये तो बता तेरा नाम क्या है, पूरी तरह। ए किताब तू ये तो बता तेरा नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा नाम पूछते हो, यासीन वल कुरानिल हकीम, मेरा नाम कुरान है, मैं हिकमत से भरा हुआ समंदर हूँ। ए किताब तेरा नाम क्या है, वो खुद जवाब देती है अर-रहमान अल्लमल कुरान, मेरा नाम कुरान है, मैं इल्म का बहता हुआ दरिया हूँ। ए किताब तू ये बता तेरा काम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा काम पूछते हो हुदल लिल मुत्तकीन, मेरा काम ये है मैं मुत्तकीन की हिदायत का समंदर बन के आई हूँ, जो भी आता है होता खाता है पाक हो जाता है। सुभान अल्लाह। ए किताब
تو یہ بتا کہ تیرا احترام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا احترام پوچھتے ہو لا یمسہ الا المطہرون، میرا احترام یہ ہے مجھے کوئی چوڑا، مجھے کوئی ملنگ مراسی، مجھے کوئی ناپاک پلیت نہ اٹھائے، جب بھی مجھے اٹھانا ہو پہلے پاک ہو کے آنا پھر مجھے اٹھانا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، محمد مصطفیٰ زندہ باد، محمد مصطفیٰ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، قرآن میرے دوست اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا احترام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے لا یمسہ الا المطہرون، میرا احترام یہ ہے کوئی پلیت چوڑا مجھے ہاتھ نہ لگائے، اگر مجھے اٹھانا ہو پہلے پاک ہو کے آنا پھر مجھے اٹھانا۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا اکرام کیا ہے، تیری تعظیم کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا اکرام پوچھتے ہو، میرا اکرام یہ ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، میرا اکرام یہ ہے کہ جب مجھے میں پڑھی جاؤں تو پھر اپنیاں شروع کر دیا کرو، چپ کر کے مجھے سنا کرو، اگر امام مجھے فاتحہ کی صورت میں پڑھ رہا ہو تو پیچھے اپنیاں شروع کر دیا کرو، چپ کر کے مجھے سنتے رہا کرو تاکہ تم پہ اللہ کی رحمت برسے۔ سبحان اللہ، اذا قرئ القرآن فانصتوا لعلکم ترحمون، میرا اکرام یہ ہے کہ جب میں پڑھی جاؤں تو پھر چپ کر کے مجھے سنا کرو، اپنیاں شروع کر دیا کرو۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا اصلی مقام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا اصلی مقام پوچھتے ہو، میرا مقام یہ ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ پہ نقش رہتی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا دنیا کے لیے میسج اور پیغام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا پیغام پوچھتے ہو جاؤ دنیا والوں کو بتا دو کہ ان ھذا القرآن یاتی باللتی ہی اقوم، میرا پیغام پوری دنیا کے لیے ہے کہ میں ہی وہ کتاب مبین ہوں، میں ہی وہ کتاب ہدیٰ ہوں، میں ہی وہ کتاب شفا ہوں کہ جو مجھے اپنے سینے سے لگاتا ہے میں اسے گھٹا دو اندھیروں سے اٹھا کر اور یہ سریا کی بلندیوں پہ چڑھا دیتی ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرے بھیجنے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرے بھیجنے والے کا نام پوچھتے ہو تنزیل من رب العالمین، مجھے عالمین کے رب نے بھیجا ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تجھے لانے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرے لانے والے کا نام پوچھتے ہو نزل بالروح الامین، مجھے فرشتوں کا سردار جبریل امین نے بھیج اترا ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تجھے لینے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے نزل علی محمد، مجھے لینے والے کا نام پوچھتے ہو میں محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوئی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تو جس مہینے میں آئی اس مہینے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مقدس مہینے میں آئی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تو جس رات پہ اتری ہے اس رات کا مکان کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میرے آنے والی رات کا مقام یہ ہے کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اے کتاب تو یہ بتا اگر تجھ سے دوستی کرے اور تجھ پہ عمل کرے تو اس کا انجام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میری دوستی کا انجام پوچھتے ہو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، میری دوستی کا انجام یہ ہے جو مجھ سے دوستی کرتا ہے میں اس کی دنیا بھی بنا دیتی ہوں اس کی عقبہ بھی بنا دیتی ہوں۔ سبحان اللہ، اے کتاب تو یہ بتا اگر تجھے پڑھے تو اس پر انعام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرے پڑھنے کا انعام پوچھتے ہو، میرے پڑھنے کا انعام بہت بڑا انعام ہے۔ کتاب کون سا؟ فرمایا پڑھنا تو دور کی بات، اگر میرے پڑھنے والی محفل میں بیٹھ جاؤ گے وہاں بھی ثواب دوں، سبحان اللہ، میرے پڑھنے والے کو جا کے سن لو گے تب بھی ثواب دوں گی، میرے پڑھے ہوئے عالم سے جا کر ادب سے ہاتھ ملا لو گے تب بھی ثواب دوں گی، میرے پڑھنے والے بچے کے سر پہ اگر ہاتھ رکھ دو گے تب بھی ثواب دوں گی، میرے پڑھنے والے بچے کو اگر 2 روٹیاں کھلا دو گے تب بھی ثواب دوں گی، میرے پڑھنے والے بچے کو اگر ٹھنڈا پانی پلا دو گے تب بھی ثواب دوں گی، اور پڑھنے پہ ثواب پوچھتے ہو تو وہ کتاب کہتی ہے میرے پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ اگر تم مجھے منہ زبانی پڑھو گے بن دیکھے بن چھوئے بن اٹھائے بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے، قرآن اٹھانا جائز ہے، قرآن کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔ اگر آپ کو وضو نہیں، آپ کو کوئی صورت یاد ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ کتاب کہتی ہے میرے پڑھنے کا ثواب پوچھتے ہو
अगर मुझे बिन छुए बिन उठाए पढ़ो, चलते फिरते प्लेन में, ट्रेन में, जहाज में, सफर में, हजर में, खेती बाड़ी में, दुकान में, मकान में, सियासत में, मईशत में, मुआशरत में, तिजारत में, जहाँ भी तुम हो, और चलते फिरते 2-4 सूरतें याद है और तुम ये पढ़ रहे हो, तो मैं मुंह ज़बानी पढ़ने पर, कुरान कहता है 1 हरफ के बदले में 10 नेकियां दिलवाता हूँ, 10 गुनाह माफ कराता हूँ, 10 दर्जे बुलंद करता हूँ। सुभान अल्लाह। अगर तुम मुझे वुजू करके हाथों में उठा के पढ़ोगे, तो फिर हाथों में उठाने की बरकत से मैं 1 हरफ के बदले में 25 नेकियां दिलवाती हूँ, 25 गुनाह माफ कराती हूँ, 25 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे नफल नमाज में पढ़ोगे, मैं 1 हरफ के बदले में 50 नेकियां दिलवाती हूँ, 50 गुनाह माफ कराती हूँ, 50 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे फर्ज नमाज में पढ़ोगे, मैं 1 हरफ के बदले में 100 नेकियां दिलवाती हूँ, 100 गुनाह माफ कराती हूँ, 100 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे रमजान के महीने में पढ़ोगे, मैं 1 हरफ के बदले में 7,000 नेकियां दिलवाती हूँ, 7,000 गुनाह माफ कराती हूँ, 7,000 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे रमजान के महीने में अल्लाह के घर काबे में बैठ के पढ़ोगे, मैं 1 हरफ के बदले में 7 लाख नेकियां दिलवाती हूँ, 7 लाख गुनाह माफ कराती हूँ, 7 लाख दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे मुंह ज़बानी पढ़ोगे, मैं नाम रखा कहलवाती हूँ। अगर मुझे याद कर लोगे, माँ बाप समेत जन्नत के ताज पहनवाती हूँ। अगर मुझे अच्छी आवाज से पढ़ोगे, मैं कारी कुरान के लक़ब दिलवाती हूँ। अगर मेरे माने को समझ लोगे, आलम दीन की दस्तार बदलवाती हूँ। अगर मेरी गहराई में उतर जाओगे, तो मैं मुफस्सिर कुरान के ताज पहनाती हूँ। अगर मुझ पे अमल कर लोगे, मैं जहन्नम से आजाद करा के जन्नत का मालिक बनाती हूँ। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, सरकार सहाबा जिंदाबाद, रजाया बादशाह जिंदाबाद। तो जो है जिक्र किया गया दोस्तों, वो अल्लाह का कलाम जो आज इस छोटे से मदरसे में, हाँ, आपने मौलवी साहब को दिए थे, कारी साहब को, कारी दोस्तार साहब को दिए थे, जब वो नाफी साहब की तरफ से सकते होंगे। आज उन्होंने मेहनत करके तुम्हें हाफिज़ कुरान बनाकर, माँ बाप समेत जन्नत का हकदार बनाकर तुम्हें वापस किया। अभी लोग तबर्रा करते हैं मदारिस पर, उलमा पर, अभी हर चौक चौराहे में, ठोके पे, खड़े पे, दुकान पे, मकान पे, डेरे पे, अगर कोई जेरे पैर है तो वो सिर्फ मौलवी की जात है। किसी जागीरदार सरमायादार वडेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता। पता है फीडबैक में क्या है, पता है मौलवी लावाने से बेचारा 5-7 हजार तनख्वाह का इमाम है, खतीब है, क्या बिगाड़ लेगा? जो भी गुस्सा है निकालो मौलवी, निकालो मौलवी। मैं कहा करता हूँ कि मुसलमानों, उलमा के दुश्मन रूए ज़मीन पे बहुत है। फिलहाल तुम्हारी जरूरत हमें नहीं है, फिलहाल तुम्हारी जरूरत हमें नहीं है। तुम हमारे साथ रहो तो अच्छा है। और बहुत है हम पे तबाह करने वाले, पूरी दुनिया भरी पड़ी है। सेकुलर भी, लिबरल भी, सोशलिस्ट भी, कैपिटलिस्ट भी, दैनिया भी, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, यहूदी भी, मजूसी भी, सारी दुनिया मुसलमानों के मौलवियों पर तबाह करती है कि इनकी वजह से इस्लाम फैल रहा है। फिर तुम्हारी कभी कहाँ महसूस होगी कि तुम भी हमें शुरू हो जाते हो? तुम्हारी फिलहाल जरूरत नहीं है। और उलमा के गुस्ताखों के बारे में किसी आलिम से पूछ लेना कि हदीस क्या कहती है कि जो उलमा की गुस्ताखी करेगा उससे छोटी से छोटी सजा पता है क्या है? उलमा को गुस्ताखी का जुर्म कहने वाले की हदीस के मुताबिक छोटी से छोटी सजा ये है कि अल्लाह फरमाते हैं मैं उसकी नस्ल में किसी को दीनदार नहीं बनने दूंगा। ये छोटी से छोटी सजा कि जिसने उलमा पे बकवासबाजी की, ज़बान दराजी की, तबर्राबाजी की। उलमा तुम्हारी तरह के इंसान है, ये मौलवी, कारी, हाफिज, इमाम, मौज़िन तुम्हारी तरह के इंसान है। कोई नूरी फरिश्ते नहीं है, आसमान से नहीं उतरे। तुम्हारी तरह से कोई गलती भी हो सकती है, कोई भूल चूक भी हो सकती है, कोई कमी कोताही भी हो सकती है, कोई गुनाह भी हो सकता है। तुम्हारी तरह के बशर और इंसान है। जिस तरह अपने बाप का गुनाह छुपा देते हो, वैसे आलिम का भी छुपा दिया। जिस तरह अपने बेटे की गलती छुपा देते हो, वैसे इमाम की भी गलती छुपा दिया। वो भी इमाम है, वो भी इंसान है, आपकी और मेरी तरह। इसलिए उलमा के साथ चल सको तो चलो, कम से कम मुखालफत का धब्बा अपने दामन पे कभी न लगने देंगे, नहीं तो दुनिया आखिरत बर्बाद हो जाएगी। ये उलमा जिनकी मेहनत आपके सामने है, चंद रुपयों के, टकों के चंदे कर करके मदरसों को बनाया, चटाइयां बिछाई, रोटियां जमा की,
ये आपको थोड़ी बहुत ही पका दी और लोगों को कहा यार बच्चे भेजो हम आपके दौर आलम बना दें। कितनी बड़ी कुर्बानी है। तो वरना तो मैं कहा करता हूँ मौलवी तुमसे ज्यादा चालाक होता है। वैसे भी तुम मानते जरूर हो कि मौलवी बड़े चालाक होते हैं, मानते हो ना, मौलवी बड़े सही होते हैं। तो फिर सोचो ये चालाक कौम, सही कौम अगर कारोबार बिजनेस पे लग जाती तो तुमसे ज्यादा कमाती। वो पागल नहीं है कि 8,000 की तनख्वाह पे खड़े हैं। उनके दिल में दीन का दर्द है, उनके दिल में दीन की अहमियत है। अगर मैं तुमसे ज्यादा चालाक है, सही है, अकील फकीर और शहीद और शकीर और मतीन है, तुमसे ज्यादा बिजनेस कारोबार कर सकते हैं। लेकिन नहीं, शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने मौलवियों की रोजी भी दीन में रख दी। शुक्र है अल्लाह का। कुछ लोग तो ताने देते हैं ना, और मौलवी पेट की खाते, पेट की खाते, पेट की खाते। हाँ, लगता है कि मौलवी को 12 रुपया खाते हैं और तुम 1 खाते हो। ऐसा नहीं है, पेट की खातिर नहीं है। पेट की खातिर होता तो वो कारोबार बिजनेस की तरफ जाता, दूसरी एनर्जी अपनी सारी एनर्जी दूसरी दुनिया की तरफ लगाता, दीन की तरफ न लगाता। वो 5-7 हज़ार तक खा लेके तुझसे चलते जाके और तेरे ताने सहकर और 2-2 टके के लोगों की बातें सुनकर, जिसने आज तक टके का चंदा भी नहीं दिया होगा, वो सबसे ज्यादा बैठ के भूखे पे और होटल पे तबाना करेगा मौलवियों पर। जिसके दिल में उलमा की दुश्मनी होगी वो ज्यादा तबाना करेगा। उनकी बातें सुनकर भी मैं इसकी अजमत को सलाम करता हूँ कि ये डिसहार्ड नहीं हुआ, ये इस दिन बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने लोगों की बातें सुनकर दीन के काम को छोड़ा नहीं, अल्लाह के सामने अकेले रो लिया लेकिन छोड़ा नहीं, लगा उस दीन के काम पर। अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए कर रहा हूँ। दुनिया जो कहती है उसे कहने दे। तू तो देख रहा है कि मैं कैसे गुजारा करके इन बच्चों को हाफिज और आलिम बना रहा हूँ। रब्बे काबा की कसम, इस बंदे को अल्लाह दुनिया में भी अजर देगा, आखिरत में भी अजर देगा। सुभान अल्लाह। तो वो अल्लाह का कलाम, वो अल्लाह की किताब, जिसके बारे में किसी ने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह से पूछा, इमाम साहब बताएं ये कुरान क्या है, ये कुरान क्या है, मुख्तसर बताएं। इमाम साहब ने को कहा किसी ने, इमाम साहब 2 जुमलों में, जैसे अल्लाह ने 2 जुमलों में तारुफ कराया ना, इमाम साहब आप भी 2 जुमले कुरान के लिए कहें जिसमें कुरान की पूरी शान और खुलासा बात हो जाए। इमाम गज़ाली ने कहा हाँ मैं 2 जुमले कहता हूँ। एक जुमला ये है कि ये कुरान आसान भी है, मुश्किल भी है। ये कुरान आसान भी है, मुश्किल भी है। और दूसरा जुमला ये है कि ये कुरान छोटा भी है, बड़ा भी है। 2 जुमलों में तारुफ कराया कि ये आसान भी है, मुश्किल भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है। साहिल ने पूछा इमाम साहब आप इन 2 जुमलों की जरा वजाहत भी कर दें, आसान कैसे, मुश्किल कैसे है, छोटा कैसे, बड़ा कैसे है। तो इमाम गज़ाली ने कहा आसान तो इतना है, तवज्जो करना, आसान तो इतना है कि 7 बरस का बच्चा भी इसको याद कर लेता है। सुभान अल्लाह। आसान तो इतना है कि 7 बरस का बच्चा भी इसको याद कर लेता है, लेकिन मुश्किल इतना है कि कई 100 साल गुजर गए, बड़े बड़े उलमा, औलिया, असफिया, अत्किया, शुअरा, उदबा, उलमा, सुलहा, मुफक्किरीन, मुहक्किकीन, मुसन्निफीन, मुतक्किबीन, मुफस्सिरीन इसमें गोते लगाते रहे, लेकिन इसकी गहराई तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका। आसान इतना कि 7 बरस का बच्चा याद कर, मुश्किल इतना कि आज तक इसकी गहराई तक जा ही कोई नहीं सकता। और दूसरा जुमला फरमाया, तो जो मेरी तरफ, और दूसरा जुमला फरमाया कि ये कुरान छोटा भी है, बड़ा भी है। साहिब ने पूछा इमाम साहब वो कैसे, तो इमाम साहब ने कहा छोटा तो इतना है, पूरी तवज्जो चाहूंगा। इमाम साहब ने कहा छोटा तो इतना है कि 7 बरस के बच्चे के एक हाथ में भी पूरा आ जाता है। अगर इसको बच्चा भी एक हाथ से उठा सकता है ना, छोटा तो इतना है। आजकल तो पॉकेट वाले कुरान भी निकले हुए ना, इतने से, इतने छोटे से भी कुरान है, लिखे हुए बारीक लिखाई है। तो इमाम साहब ने कहा छोटा इतना है कि 7 बरस के बच्चे के हाथ में पूरा आ जाता है, लेकिन बड़ा इतना है अल्लाह ने सारी कायनात उठाकर इस कुरान में रख दी है। सुभान अल्लाह। छोटा इतना कि 7 बरस के बच्चे के हाथ में पूरा आ जाए, और बड़ा इतना कि सारी कायनात इसी में पूरी आ जाए। वही अल्लाह का कलाम जो सिर्फ किताब नहीं, ये किताब खुदा है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताब शफा है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये किताब मुकद्दस है। और ये किताब हुदा और किताब बरकत और किताब रहमत और किताब अज़मत है। इस किताब के साथ ऐसा ताल्लुक बनाओ जिस तरह कुछ लोगों की आदत होती है ना कि रात को जब तक डाइजेस्ट या कोई रिसाला ना पढ़े, कोई किताब ना पढ़े, उनको नींद नहीं आती। कहते हैं कि बस आदत सी पड़ गई है, जब तक रात को कोई किताब या डाइजेस्ट ना पढ़े नींद नहीं आती। अल्लाह करे हम ऐसे मुसलमान बन जाए कि जब तक रात को कुरान ना पढ़े हमें नींद ना आए। तो कहते हैं ये अल्लाह का कलाम
इन्हीं दीनी मदारिस में पढ़ाया जाता है, इन्हीं मदारिस में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे कोई दहशतगर्दी के अड्डे नहीं, कोई फसाद की जड़ नहीं। ये अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पूरी दुनिया को आम करने के लिए पढ़े। यहाँ पे कोई दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी, फिरकावारियत कुछ भी नहीं बताया जाता। यहाँ पे अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान पढ़ाया जाता है। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, शान कुरान, अज़मत कुरान, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, अक़वाल सहाबा, आमाल सहाबा, शान सिद्दीक़ अकबर, शान फारूक आज़म, शान उस्मान गनी, शान अली मुर्तज़ा, शान अमीर मुआविया, सियासत अमीर मुआविया, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, अकीदा हयातुन नबी, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। और पिछले दिनों जो ऐवान सदर में पैगाम पाकिस्तान के उन्वान से एक बयानिया जारी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम उलमा ने देवबंद मकतब फिक्र के तमाम उलमा, तमाम जमातों के, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप है, या जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना समीउल हक ग्रुप है, या सुन्नत वल जमात है, या पाकिस्तान उलमा कौंसिल है, या तहरीक खत्म नबूवत है, या इंटरनेशनल खत्म नबूवत है, या आलमी खत्म नबूवत है, जितनी भी उलमा देवबंद की जमातें हैं उन्होंने भी, और देवबंदी बरेली हदीस तमाम मकातब फिक्र में उस बयानिए पे दस्तखत किए। मौलाना फजल रहमान से लेकर मौलाना अहमद लुधियानवी तक और मौलाना अल्लाह वसाय से लेकर डॉक्टर अब्दुल सिकंदर तक उलमाए देवबंद के तमाम अकादरीन ने उस बयानिए पे दस्तखत किए हैं कि उलमा और मदारिस का फिरकावारियत, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी से दूर कभी न ताल्लुक है न कभी होगा इंशाअल्लाह। हम उस पैगाम पाकिस्तान के बयानिया को 100% तस्लीम करते हुए पूरे मुल्क में उसको आम कर रहे हैं कि फिरकावारियत की गुंजाइश अब इस मुल्क में नहीं। ये मुल्क दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी, कत्लो-गार, खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खुदा के लिए अपने हाथों में बंदूकें उठाकर अपनी मर्जी का पैगाम मत दो, बल्कि अपने अकाबिर उलमाए देवबंद के साथ मिलकर जिस तरह उन्होंने उस बयानिए पे दस्तखत करके इस बात पे मोहर लगाई कि पाकिस्तान में कोई फिरकावारियत नहीं होगी, अगर कोई सहाबा को भोंकेगा उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी, अगर कोई आले बैत को भोंकेगा उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। हम हुकूमत के इस बयानिए की तारीफ करते हुए पूरे मुल्क में ये ऐलान कर रहे हैं
आपका ज़ौक़ ताज़ा देख के एक और भी तोहफा आपको देना कि आज हम इस मेंबर से जो बातें कर रहे हैं, ये बातें किसी तालीशाह, घोड़ेशाह, दौलेशाह से नहीं मिली। ये बातें हमें किसी ऐरे गहरे नद्दू ठहरे से नहीं मिली। हम अपने मेंबर पे खड़े होकर जो बात करते हैं वो बात यहाँ से चलती है सीधा गुंबद खिज़रा तक चलती है। हम किसी ऐरे गहरे इधर उधर नद्दू ठहरे की बात न करते हैं न मानते हैं। हम जो भी बात करते हैं वो इस मेंबर से लेकर गुंबद खिज़रा तक उस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारी हर बात, हमारा इल्म, हमारा अमल, हमारा फ़हम व फ़रासत, हमारा ज़ुहद व तक़वा, हमारा इल्म व इरफ़ान, हमारी फ़हम व दानिश, सब कुछ गुंबद खिज़रा से, मकीन गुंबद खिज़रा से जो अपने रोज़े में जिंदा है। अकीदा हयातुन नबी जिंदाबाद, अकीदा हयातुन नबी जिंदाबाद, फतेह राशिदा जो अपने रोज़े में सलाम भी सुन रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। इसीलिए कहा गया बाबा नबी की बात बड़ी रोज़ा को मिल रियाज़ जन्नत। ये मेरा ये रोज़ा जन्नत का एक बाग है। रोज़ा तुम मिल रियाज़ जन्नत, जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत का बाग है। तो माना क्या निकला कि हुजूर जन्नत में सोए हुए हैं। कहाँ? कहाँ? सारे नहीं बोल रहे कहाँ? ईमान से बताओ, सोच के जवाब देना। ईमान से बताओ, जन्नत मुर्दों के लिए होती है या जिंदों के लिए? जिंदों के लिए। तो जब मेरा नबी है जन्नत में, तो जन्नत में तो जिंदा होते हैं, जन्नत में तो मुर्दे नहीं होते। इसलिए कहा बाबा नबी की मम्मी रोज़ा तुम रियासत जन्नत। तो मैं उसका बात, हमारा दीन, हमारा इल्म, हमारा ज़ुहद व तक़वा, फ़हम व फ़रासत, सूझ बूझ, अक़ल व दानिश, इल्म व इरफ़ान, सब कुछ हमें गुंबद खिज़रा से कहाँ से मिला है? गुंबद खिज़रा से। मैंने जो आपके सामने हदीस पढ़ी, बाबा नबी की मम्मी पर या खैर हुकूमत ताल्लम अल कुरान वाला, मैंने जो आपके सामने ये हदीस पढ़ी, ये हदीस तवज्जो मेरी तरफ है, ये हदीस मैंने पढ़ी, इस हदीस का इल्म मैंने हासिल किया अपने शेखुल हदीस मौलाना नज़ीर अहमद फैसलाबादी से। 1987 में मैंने दौरा हदीस किया था जामिया दादिया फैसलाबाद से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वो हदीस पढ़ी अपने शेख मौलाना नज़ीर अहमद फैसलाबादी से। मेरे शेख नज़ीर अहमद फैसलाबादी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला मुल्तानी से। फिर मुफ्ती अब्दुल्ला मुल्तानी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी से। फिर हुसैन अहमद मदनी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी से। फिर शेख उल हिंद ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख उल अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी से। फिर हुसैन अहमद मदनी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख उल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी से। फिर कासिम नानोतवी ने वो हदीस पढ़ी अपने शाह मोहम्मद इसाक से। फिर शाह इसाक ने वो हदीस पढ़ी अपने शाह अब्दुल गनी से। फिर शाह अब्दुल गनी ने वो हदीस पढ़ी अपने शाह अब्दुल अजीज से। फिर शाह अब्दुल अजीज ने वो हदीस पढ़ी अपने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से। फिर शाह वलीउल्लाह ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख अबू ताहिर मदनी से। फिर शेख अबू ताहिर मदनी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख इब्राहिम गुदरी से। फिर इब्राहिम गुदरी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख अब्दुल हक बंदोही से। फिर अब्दुल हक बंदोही ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख मोहम्मद इब्न अहमद से। फिर मोहम्मद इब्न अहमद ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख उसामुद्दीन से। फिर शेख उसामुद्दीन ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख जलालुद्दीन से। फिर शेख जलालुद्दीन ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख मोहम्मद इब्न आरिफ से। फिर मोहम्मद इब्न आरिफ ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख रबी इब्न सबी से। फिर रबी इब्न सबी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख अबू ईसा इमाम तिरमिज़ी से। फिर इमाम तिरमिज़ी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख मोहम्मद इब्न इस्माईल इमाम बुखारी से। फिर इमाम बुखारी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हज़रत याह्या बिन मुईन से। फिर याह्या बिन मुईन ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से। फिर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख इमाम आज़म अबू हनीफा से। फिर अबू हनीफा ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हज़रत हम्माद से। फिर हज़रत हम्माद ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हज़रत इब्राहिम नखी से। फिर इब्राहिम नखी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हज़रत अल्क़मा बिन कैस से। फिर अल्क़मा बिन कैस ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से। फिर अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने वो हदीस पढ़ी सैयदुल अंबिया जनाब
हमने किसी ऐरे गहरे लद्दू खैरे से लिया। हमारी सनत है, हमारी एक तस्वीर है जिसका पहला मोती इस मेंबर पे होता है, आखिरी मोती वो मदद की जरा पे। इन मोतियों में परोई हुई ये लड़ी हमारी सनत, आज तक उस पैगंबर का दीन, उस नबी की हदीस सीना बसीना चलती आई मुझ तक आई, कायद तो सकार तक आई, दिन उलमा हुफाज तक आई। ये एहसान करके आगे आपके बच्चों को मुंतकिल करते हैं। ये एहसान इनको चंदा दे के एहसान न जताया, खुदा की कसम इनका एहसान माना करो कि तुम्हारे चंद पैसे तुम्हारी आखिरत के लिए जखीरा करा रहे हैं। इनका एहसान माना करो, वरना दुनिया तो बर्फ के गुलाब की तरह पिघल रही है, जिंदगी भी पिघल रही है, कोई पता नहीं आखिरी खतरा किस दिन तक पहुंचे। गनीमत समझा करो कि ये उलमा आपको मिन्नत समाजत करके आपके सामने बड़ी लजाजत करके बड़े यूं बिचारे करते हैं, बड़े आपके सामने छुप के बैठते हैं, बड़ी आजियत मसाली करते हैं। वो जी आज दाल खत्म है जी, आज चटाइयाँ फट गई, आज बिजली का बिल भरना है, आज ये करना है। काबे तरफ की कसम इनका तुम पे एहसान है कि तुम्हारे चंद टके अल्लाह के दीन पे लगवा देते हैं, चंद टके। मगर ना यही तुम्हारे पैसे किसी हराम चीज पे भी लग सकते थे, किसी एक्सीडेंट पे भी लग सकते थे, बीमारी पे भी लग सकते थे, किसी चीज पे लग सकते थे। लेकिन उलमा का एहसान है कि वो तुम्हारी मिन्नत समाजित करके तुम्हारी दौलत दीन पे भी कुछ खर्च करा देते हैं, ताकि कयामत के दिन डूबते को तीनटे का सहारा तो हो, कुछ ना कुछ तो चलो ये अल्लाह के दीन पे लगा चुका हो, शायद उसकी बख्शिश के लिए वही टके ही काफी हो जाए। इसलिए इन मदारिस और इन उलमा का मरहूम मिन्नत रहा करो, इन उलमा और मदारिस की हौसला शिकनी न किया करो, इनकी हौसला अफजाई किया करो। ये अल्लाह की किताब को इतनी मेहनत से पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। मैं तो पूरी दुनिया में जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह की गुरु को अल्लाह ने मुझे दीन के नाते सफर कराया है। पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, क्या अरब, क्या अजम, क्या बर्रे आज़म, क्या बर्रे सगीर, क्या अफ्रीकी ममालिक, क्या कैनेडियन ममालिक, क्या यूरोपीय ममालिक, सारे अल्लाह मुझे ले गया। मैंने हर जगह पे कहा है यहूदियों ईसाइयों आओ, हम तुम्हें चैलेंज करते हैं कि तुम्हारे स्कूलों में, तुम्हारे कॉलेजों में, तुम्हारी यूनिवर्सिटियों में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों डॉलर, पाउंड, यूरोस का बजट होता है। इसके बावजूद भी रूए ज़मीन तक आज तक न तुम्हें कोई तौरात का हाफिज मिलेगा, न तुम्हें कोई इंजील का हाफिज मिलेगा। अरबों डॉलर, यूरो, पाउंड उनके सालाना बजट होते हैं, उनके स्कूल, कॉलेजेस, मिशनरी स्कूल, एकेडमीज, यूनिवर्सिटीज, अरबों डॉलर के बजट, लाखों लाखों रुपए मंथली तनख्वाहें, फैसिलिटीज। इसके बावजूद भी रूए ज़मीन पर आज तक वो न एक तौरात का हाफिज बना सके, न इंजील का हाफिज बना सके, न ज़बूर का हाफिज बना सके। कुर्बान जाऊं नहीं भोरिया नशीब उलमा पर जो तुम्हारे दरवाजों से 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 रुपए का चंदा लेकर इतनी मेहनत कर गए कि रूए ज़मीन के किसी मुल्क में चले जाओ, उस मुल्क के किसी शहर में चले जाओ, उस शहर के किसी मोहल्ले में चले जाओ, तुम्हें दीन का आलिम भी मिल जाएगा, कुरान का हाफिज भी मिल जाएगा। ऐसा है या नहीं है? ईमान से बताओ, कोई मोहल्ला ऐसा है जहाँ हाफिज ना हो? बल्कि ऐसा होता है कि रमजान जब आता है ना, रमजान तो जब एक कोई बदनसीब मोहल्ला हो तो हो, मैं मान लेता हूँ कि मोहल्ले वाले इतने बदनसीब हो के वहाँ कोई हाफिज ना बन सका हो, मगर मैं मेरे इल्म में तो ऐसा कोई नहीं है कि उस मोहल्ला या बस्ती में कुरान का हाफिज ना हो। तो जब एक तरफ आपस में सुनवार में कर लेना, हाँ, कि जब रमजान आता है, जब रमजान आता है तो मस्जिदें कम पड़ जाती है, हाफिज बच जाते हैं। होता है या नहीं होता? हाफिज बच्चे अपने उस्ताद के पास आते हैं, उस्ताद जी रमजान में मेरे लिए मस्जिद तो देखना, मैं कुरान सुनाऊंगा। कहते हैं ना, मस्जिदें खत्म हो जाती है, हाफिज फिर भी आधे से ज्यादा भी बाकी होते हैं। तो ये इस मौलवी की मेहनत तो है, इतने तेरे मुल्क में मस्जिदें नहीं बनी जितने इसने हाफिज बना दी है। अब भी तो इसमें दौरा करेगा, अब भी इसमें अपना गुस्सा निकालेगा, अब भी इसमें अपने दीन और निस्बत कराएगा कि जिसमें तेरे मुल्क की मस्जिदों से ज्यादा कुरान के हाफिज और दीन की आलिम है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन मदारिस, उलमा, तलबा से ताउन करने की तौफीक आमीन करोगे इंशाअल्लाह। और इस मुल्क में हमें इस्लामी निज़ाम के तगदो के लिए कोशिश करने की और इस्लामी निज़ाम के दिफास के लिए उलमा का साथ देने की भी तौफीक आमीन। इस दौर में गनीमत है कायदे जमीयत, मुफक्किर
कलमे के नाम पे बना था या सेकुलर स्टेट बना था? सोशलिज्म कम्युनिज्म के लिए तो नहीं बना था। नारा लगाया गया था पाकिस्तान का मतलब क्या? आज भी कलमे वालों के पीछे लगे कि ये कलमे की बात क्यों करते हैं? क्या उस वक्त धोखा था या अब धोखा है? अब पाकिस्तान जब बना था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर और अकाबिर उलमा और अवाम की वो कुर्बानियां, जब पाकिस्तान बना तो आपके और हमारे आवाम और अजदाद को याद है कि उस वक्त इस कौम ने कितनी कुर्बानियां देकर ये पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि हम हिंदुस्तान में दीनी और शरई तौर पे आज़ाद नहीं है, हम मदीने की तर्ज पे एक अपनी रियासत बनाना चाहते हैं जिसमें या खुदा के कुरान वाला निज़ाम हो या मोहम्मद मुस्तफ़ा वाला निज़ाम, इसलिए बना था। तो फिर आज तुम भी घर बैठ के ये सोचा करो कि उस निज़ाम के लिए मेहनत कौन कर रहा है, कौन सी सियासी जमात, पार्टी, वर्कर, लीडर कौन है जो इस मुल्क में इस्लाम का नाम देता है? अगर देखोगे तो सियासी जमातों में सिर्फ तुम्हें जमीयत उलमा इस्लाम नजर आएगी। वो जमीयत उलमा इस्लाम आज तक जिसके लिए हम चैलेंज किया करते हैं, जब से पाकिस्तान बना हमारे अकादर सियासत में आए और खास तौर पर 1970 से उलमाए देवबंद असेंबलियों की जीनत बने, एमपीए बने, एमएलए बने, एडवाइजर बने, मिनिस्टर बने, सेनेटर बने, चीफ मिनिस्टर बने। मुफक्किर इस्लाम मौलाना गुलाम गौस अदालवी से लेकर मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद तक, बदर हुर्रियत मौलाना आज़म तारिक और इसारुल कासिमी से लेकर मौलाना फजलुर रहमान तक, आज तक हमारे सैकड़ों एमपीए, एमएलए, वजीर, मुशीर, सेनेटर, एडवाइजर, चीफ मिनिस्टर बने। मुफ्ती महमूद साहब भी वजीर आला बने थे सरहद के और अकरम दुरानी भी 2002 में वजीर आला बने थे सूबे सरहद के एमएमए के दौर में। आज तक हम चैलेंज करते हैं, तुमने देखा होगा टीवी पे, रसायल में, जरायद में, मीडिया में, नैब की अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तुमने देखा होगा हर पार्टी के लोग घसीटे जा रहे हैं कि इसने फला करप्शन की, इसने फला करप्शन की। कोई कहता है ज़रदारी बड़ा चोर है, कोई कहता है नवाज उससे बड़ा चोर है, कोई कहता है नहीं इमरान मुस्तकबिल का चोर है, कोई क्या कहता है तो क्या कहता है। लेकिन बताओ हमारे उलमाए देवबंद में से आज तक 1970 से लेकर 2018 तक एक भी देवबंदियों का एमपीए, एमएलए, वजीर या मुशीर करप्शन के बदले कभी जेल में गया? बोलो, कभी जेल में देखा? चलो जेल तो दूर की बात है, कभी करप्शन का पर्चा हुआ? हाँ, सिर्फ यार लोग झूठे कसाब लोग खाली दूर बैठ के इल्जाम लगा सकते हैं। इल्जाम उसने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अगर किसी के इल्जाम में कोई सदाकत होती तो जिस तरह सारे सियासतदान अदालतों में घसीटे जा रहे हैं तो फिर कायदे जमीयत भी आज अदालतों में खड़े होते। उसका अदालतों में किसी का नाम बुलाना और उसका इल्जाम किसी को साबित न करना, ये इस चीज की गवाही है कि हमारी क़यादत कल भी बेदाग थी, आज भी बेदाग। कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब जिंदाबाद, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब जिंदाबाद, जुनैदबंद गैरतमंद देवबंद, जुनैदबंद गैरतमंद देवबंद। आने वाले इलेक्शन 2018 में तुम भी उलमा का साथ दोगे इंशाअल्लाह? उलमा के पलड़े में अपना वजन डाल के नाम लिखवाओगे इंशाअल्लाह? हार जीत मुकद्दर की होती है मेरे दोस्तों, हार जीत के फैसलों को ना देखा करो। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने चिट्ठे में डाला था ना, तो एक छिपकली ने फूंके मारी थी और एक चिड़िया ने पानी के 2 घूंट डाले थे। अब उसके पानी के 2 घूंटों से आग बुझी नहीं थी और उस छिपकली के फूंकों से आग बढ़ी नहीं थी, लेकिन अल्लाह के रजिस्टर में नाम दर्ज हो गए कि नबी का खैर था कौन था, नबी का बद था कौन था। इसलिए हार जीत को मत देखा करो, उलमा के पलड़े में अपना वजन डाला करो ताकि क़यामत के दिन तुम भी उलमा के साथ तोले जाओ। मैं इसके लिए मिसाल दिया करता हूँ, गंदम बेचते हो ना, गंदम में छोटे छोटे मट्टी के रोड़े भी होते हैं ना, बोलो होते हैं ना। जब गंदम बेचते हो तो वो छोटे छोटे मट्टी के रोड़े भी गंदम के रेट में बिक जाते हैं, बिकते हैं कि नहीं बिकते? गंदम के रेट में बिक जाती है। अगर तुम उलमा का साथ दोगे, रब्बे काबा की कसम क़यामत के दिन तुम्हारा रेट भी उलमा वाला है। क्यों कि जो जिस जिन्स में दाखिल होता है उसी जिन्स की कीमत लगती है। कभी सुनार की दुकान की मट्टी को बिकता देखा है? हाँ?
सुनार की दुकान को जब झाड़ू देते ना तो फिर मट्टी निकलती है, तो वो मट्टी तुम्हारी और हमारी मट्टी तो नाली में जाती है ना, सुनार की मट्टी भी बिकती है, बिकती है भी बिकती। क्यों? कि वो सोने से मिली हुई होती है, उनको पता है कि इस दुकान की मट्टी भी कीमती है। तो अगर तुम उलमा के साथ मिल जाओगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ क़यामत के दिन अल्लाह की दरबार में तुम्हारी ये कीमत लगेगी कि ये भी उलमा के साथ थे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आने वाले इलेक्शन में उलमा का साथ देने की और हर मोड़ पर हर जगह पर उलमा को मदद और ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। करोगे? दो हाथ खड़ा करके वादा करो जो कहते हैं उलमा का ताउन करेंगे, उलमा का साथ देंगे, उलमा के पल्ले में रहेंगे और अपना वज़न उलमा के पल्ले में डालेंगे। मैं आपसे यही कहता हूँ कि तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वातुल दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्र व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबल मीज़ान। اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفار. اللهم या शाफी अमराज विश्व मरजाना मरज़ा मुस्लिमीन, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा, या अल्लाह हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा, या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमा, या अल्लाह जो वफात पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह जो जिंदा है उनको सिरात मुस्तक़ीम पर चला, या अल्लाह इस मदरसे को मस्जिद को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, या अल्लाह दुनिया भर के तमाम मदारिस को मसाजिद को तबलीग के मराकिज़ को खानकाहों को या अल्लाह शाद आबाद फरमा, सुबह क़यामत तक शाद आबाद फरमा, या अल्लाह गैब से हिफाजत और मदद और नुसरत फरमा, या अल्लाह कारी दोस्तार साहब और उनके दूसरे दोस्तों ने मुंतज़मीन ने इस जलसे का इंतजाम इंतजाम किया है, या अल्लाह जिन दोस्तों ने जिनके साथ ताउन किया है, या अल्लाह उनके और हम सब के इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, उम्र में, सेहत में बेबहा बरकत अता फरमा। या अल्लाह जिन बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है इन बच्चों को आमिल कुरान बना, या अल्लाह जिस तरह आपका वादा है इन बच्चों के माँ बाप के लिए जन्नत के फैसले फरमा। या अल्लाह हम सबको जिंदगी ईमान सादत वाली और अज़मत और बरकत और राहत और रहमत वाली अता फरमा। या अल्लाह मौत ईमान अज़मत और शहादत वाली अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या